توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو مجموعی طور پر 17 سال قید کی سزا، 1 کروڑ 64 لاکھ روپے فی کس جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ عدالت نے ایف آئی اے اینٹی کرپشن ایکٹ کی دفعہ 5 کے تحت بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 10 سال قید کی سزا سنائی۔ پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 409 کے تحت دونوں ملزمان کو 7 سال قید کی سزا بھی سنا دی گئی۔ نیب نے توشہ خانہ 2 کیس میں 13 جولائی 2024 کو بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اڈیالہ جیل میں گرفتاری ڈالی تھی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی 37 روز تک اڈیالہ جیل میں نیب کی تحویل میں رہے۔ تفتیش مکمل ہونے کے بعد نیب نے 20 اگست کو احتساب عدالت میں توشہ خانہ 2 کیس کا ریفرنس دائر کیا تھا۔ کیس کا فیصلہ اڈیالہ جیل میں اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے سنایا۔ توشہ خانہ کیس کے فیصلے سے ثابت ہوا کہ بانی پی ٹی آئی نے کرپشن کی، ملنے والے تحفے مارکیٹ میں کوڑیوں کے بھاؤ بیچے گئے، 60 کروڑ تحفے کی قیمت 13 لاکھ لگانا کون سا مذاق ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے دنیا بھر میں پاکستان کی بدنامی کرائی۔ 190 ملین پاؤنڈ کا میگا کرپشن کیس بھی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا توشہ خانہ کیس 2 کے فیصلے پر رد عمل۔ توشہ خانہ 2 کا فیصلہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ہونے والی کرپشن کا منہ بولتا ثبوت۔ بانی اور بشرا بی بی کو سزا آئین کے مطابق ہوئی۔ پی ٹی آئی دور میں توشہ خانہ کے رولز تبدیل کر دیے گئے۔ بانی پی ٹی آئی نے بار بار آئین اور قانون کو توڑا۔ ملنے والے تحائف کو توشہ خانہ میں جمع کرانے کی بجائے ان کو بیچا گیا۔ پی ٹی آئی کا سیاسی نعرہ ہی کرپشن تھا۔ بشرا بی بی اور وزیر اعلیٰ نے ریکارڈ کرپشن کی۔ کیس کا فیصلہ خوش آئند ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس کے فیصلے پر سیاسی رہنماؤں کا رد عمل۔ 9 مئی 2023 کو کلب چوک جی او آر گیٹ پر حملے کے مقدمے میں یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ کو 10 سال قید کی سزا، شاہ محمود قریشی بری۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے فیصلہ سنا دیا۔ پروسیکیوشن کی جانب سے 56 گواہ عدالت میں پیش۔ دوران ٹرائل 4 ملزم اشتہاری قرار دیے گئے۔ 9 مئی کے ملزمان کو سزائیں عوام کو اشتعال دلانے اور سرکاری املاک پر حملے کے لیے اکسانے جیسے جرائم پر دی گئیں۔ لاہور کی مقامی قیادت کو سزائیں پس پردہ سہولت کاروں اور اشتعال انگیز قیادت کے خلاف کارروائی کا اشارہ ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے 7 مئی 2024 کو کہا تھا کہ 9 مئی کا مقدمہ پوری قوم کا مقدمہ ہے۔ اس میں ملوث تمام سہولت کاروں اور اشتعال انگیزی میں ملوث عناصر کو جلد قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ شمالی وزیرستان کے علاقے بویا میں فتن الخارج کا سیکورٹی فورسز کیمپ پر حملہ ناکام۔ سیکورٹی فورسز کا جرت اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ، 4 خارجی ہلاک۔ حملہ آوروں نے بارود سے بھری گاڑی بیرونی دیوار سے ٹکرا دی۔ مسجد سمیت ملحقہ شہری انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا۔ معصوم بچوں اور خواتین سمیت 15 شہری شدید زخمی۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 4 جوان شہید ہو گئے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی دہشت گردوں کے حملے کی مذمت، جرت مندانہ کارروائی پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ جامع شہادت نوش کرنے والے پاک فوج کے جوانوں کو خراج عقیدت۔ شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز پر دہشت گردوں کا حملہ، افغان ڈپٹی ہیڈ آف مشن کی وزارت خارجہ طلبی، شدید احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ افغان و بوری حکومت کی جانب سے فتنہ الخوارج کی سرپرستی پر اظہار تشویش، فیصلہ کن کارروائی کا مطالبہ۔ افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی ناقابل قبول ہے۔ پاکستان اپنی خود مختاری کے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ ایگزیکٹو کمیٹی نیشنل اکنامک کونسل کی جانب سے ٹرانسپورٹ، مواصلات اور ماحولیات سمیت 11 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس میں داسو ہائیڈرو پاور منصوبے کا نظر ثانی شدہ PC1 بھی منظور۔ کمیٹی نے سالانہ 10,000 نوجوان انجینئرز کی تربیت اور انہیں ترقیاتی منصوبوں میں شامل کرنے سے متعلق پالیسی پیپر کی منظوری بھی دے دی۔ صدر آصف علی زرداری آج سے 24 دسمبر تک عراق کا سرکاری دورہ کریں گے۔ صدر مملکت عراق کے ہم منصب کی دعوت پر یہ دورہ کریں گے۔ دورے کا مقصد 2 طرفہ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہے۔
सदर आसिफ अली जरदारी इराक की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दो तरफा ताउन, तिजारत, तवानाई, सरमायाकारी, इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा। बांग्लादेश के शहीद तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। मुल्क भर में हजारों मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। हादी स्क्वायर शाहबाग में मुजाहिरीन का शदीद एहतजाज अब भी जारी। मुजाहिरीन की भारतीय वजीर आज़म के खिलाफ नारेबाजी। नरेंद्र मोदी गुजरात का कसाब करार। भारत नवाज शेख हसीना वाजिद की हुकूमत गिराने में उस्मान हादी ने अहम किरदार अदा किया था। बांग्लादेश में तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल का मामला। कलअदम छात्रा लीग के रहनुमा फैसल करीम मसूद उर्फ दाऊद खान मरकजी मुलजिम करार। फैसल करीम वाक़े के फौरन बाद भारत फरार हो गया। उस्मान हादी 12 दिसंबर को सफर के दौरान फायरिंग का निशाना बने थे। चीफ एडवाइजर बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस का उस्मान हादी की शहादत पर यौम शोक का ऐलान। भारतीय रियासत बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की जानिब से मुसलमान खातून का हिजाब उतारने का मामला। वाक़े के खिलाफ पंजाब असम्बली में मजम्मती करारदाद जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई। नीतीश कुमार को अपने गैर अखलाकी रवैये पर फौरी इस्तीफा देने का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ से ताजिकिस्तान की वज़ीर सकाफत की मुलाकात। डिजिटल मीडिया में इश्तराक, मीडिया रवाबित के फ़रोग़ और अदबी और सकाफती वर्से के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ पर गुफ्तगू। डिजिटल मीडिया के शोबे में ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। दोनों ममालिक के सदियों पर मुहित कदीम, गहरे तारीख़ी और सकाफती रवाबित हैं। अताउल्लाह तारड़। ताजिकिस्तान के वज़ीर का पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने के अज़्म का यादा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वजारत रेलवे आमद। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी से मुलाकात में पाकिस्तान रेलवे से मुतालिक उमूर और जारी इस्लाहात पर तबादला ख्याल। रेलवे के निज़ाम में बेहतरी और मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात की फराहमी पर गुफ्तगू। दोनों वज़रा का पाकिस्तान रेलवे को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के अज़्म का इजहार। सिक्योरिटी, ऑपरेशनल बेहतरी और इदारा जाती इस्लाहात पर बाहमी ताउन पर इत्तिफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में मारगला इनक्लेव प्रोजेक्ट का दौरा। तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया। बारिशों के बायस तरक्याती काम में ताखीर हुई, ताहम अफरादी क़ुव्वत बढ़ाकर ताखीर का इजाला कर रहे हैं। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा और प्रोजेक्ट डायरेक्टर की मंसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला की तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत। पाकिस्तान की डिजिटल मईशत मजबूत। IT बरामदात ने नई तारीख रकम कर दी। रवा माली साल के सिर्फ पहले 5 माह में ही IT बरामदात में 19% इजाफा। मजमूई हजम $1.8 बिलियन तक जा पहुंचा। नवंबर 2025 में IT बरामदात का हजम $356 मिलियन रिकॉर्ड किया गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। एडिलेड में एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट। ऑस्ट्रेलिया की गिरफ्त मजबूत। 435 रन के हदफ के ताक़ुब में इंग्लिश बैटिंग लाइन मुश्किलात के शिकार। कैंगरूज को मैच और सीरीज अपने नाम करने के लिए 4 विकेटें दरकार। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 371 और दूसरी इनिंग्स में 349 रन बनाए। इंग्लिश टीम पहली इनिंग्स में 286 रन बनाकर आउट हुई। 5 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल। Oh, that's a gem of a delivery. Oh, got him. Bowled him. अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप। कल फाइनल में पाकिस्तान और भारत आमने सामने। सेमीफाइनल में पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ 8 विकेटों से कामयाबी। बारिश से मुतासरा मैच 27 ओवर्स तक महदूद। बांग्लादेश 26.3 ओवर्स में 121 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान ने हदफ 16.3 ओवर्स में 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। इवेंट देखिए PTV स्पोर्ट्स और PTV नेशनल पर बराह रास्त। और ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग 7वें मैच में सिडनी सिक्सर्स और सिडनी थंडर्स की टीमें मद्दे मुकाबले होंगी।
मैच दिन 1:15 से पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। इवेंट के छठे मैच में ब्रिस्बेन हीट ने पर्थ स्कॉचर्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 8 विकेटों से शिकस्त दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं हुमा मलिक। खेल और खिलाड़ियों की खबरें लिए मैं आपके साथ रुमैसा कुरैशी और खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहली और अहम खबर आपको देंगे। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 17 साल कैद और 1,64 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई है। स्पेशल जज सेंट्रल अर्जमंद शाह ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मौजूदगी में केस का फैसला सुनाया। मुलजिमान के वकील अरशद तबरेज भी अदालत में मौजूद थे। अदालत ने FIA एंटी करप्शन एक्ट की दफा 5 के तहत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। पाकिस्तान पीनल कोड की दफा 409 के तहत दोनों मुलजिमान को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 1,64 करोड़ रुपए जुर्माने की भी सजा सुना दी। 13 जुलाई 2024 को नैब ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अडियाला जेल में गिरफ्तारी डाली थी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी 37 दिन तक अडियाला जेल में नैब की तहवील में रहे और तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद नैब ने 20 अगस्त को एहतसाब अदालत में तोशाखाना 2 केस का रेफरेंस दायर किया था। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारन ने चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि तोशाखाना 2 केस का फैसला आया है, बानी पीटीआई ने अमानत में खयानत की। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी और बानी पीटीआई ने वज़ीर आज़म हाउस को कारोबार बना रखा था। दोनों ने मिलकर पाकिस्तान का नाम दुनिया में बदनाम किया है। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि पूरी कौम ने देखा कि किस तरह फ्रॉड के जरिए ज्यादा से ज्यादा माल बनाया गया, तोशाखाना के तहफ़ बेचकर मुनाफा भी कमाया गया। उनका कहना था कि तोहफों की कम वैल्यू लगाकर खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। 60 करोड़ रुपए के तहफ़ की कीमत 13 लाख लगाकर कौम से मजाक किया गया। दोनों ने ये संगीन जुर्म किया। प्रोसिक्यूशन ने अदालत में अपना केस भरपूर तरीके से लड़ा। तोशाखाना 2 केस के फैसले पर सियासी रहनुमाओं ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि बानी पीटीआई और उसकी टीम ने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा। तोशाखाना 2 का फैसला पीटीआई के दौरे हुकूमत में होने वाली करप्शन का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सज़ा आईन और कानून के मुताबिक सुनाई गई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पीटीआई के दौर में उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया और झूठे मुकदमात कायम किए गए। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़रकियानी ने कहा कि बानी पीटीआई ने बार बार आईन और कानून को तोड़ा। आला मनसब पर बैठ कर करप्शन की गई और मिलने वाले तहाइफ को बेचा गया, जबकि कवायद के मुताबिक ये तहाइफ तोशाखाना में जमा कराना लाजिम थे। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने फैसले को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सज़ा आईन और कानून के मुताबिक हुई। उन्होंने कहा कि पीटीआई मुल्क को दोनों हाथों से लूटती रही और इस जमात का सियासी नारा ही करप्शन था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सज़ा आइन के मुताबिक सुनाई गई। उन्होंने कहा कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में तोशाखाना के रूल्स तब्दील किए गए, तहाइफ के जाली इंदराज होते रहे और सियासत के नाम पर चोर मचाए शोर का वावेला किया जाता रहा। उनका कहना था कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में बुशरा बीबी और वज़ीर आला ने रिकॉर्ड करप्शन की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई 2023 को क्लब चौक GOR गेट जलाओ घेराव हमला केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी, जबकि शाह महमूद कुरैशी को मुकदमे से बरी कर दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में मुकदमे का फैसला सुनाया। अदालत ने इश्तिहारी करार दिए गए 4 मुलजिमान फारूक अंजुम, हबीब अहमद, अरसलान और अकबर खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। मुकदमे के दौरान प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजमूई तौर पर 56 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। मुलजिमान ने GOR गेट पर नस्ब सिक्योरिटी कैमरे तोड़े, पुलिस के वायरलेस सेट्स और सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाया और पुलिस एहलकारों पर हमला भी किया।
9 मई के वाक़यात में सजाएं अवाम को इश्तियाल दिलाने और सरकारी अमलाक पर हमले के लिए उकसाने जैसे जराइम साबित होने पर दी गई हैं। लाहौर की मकामी क़यादत को दी गई सजाएं पस पर्दा सहूलतकारों और इश्तियाल अंगेज़ क़यादत के खिलाफ कार्रवाई का इशारा हैं। DGISPR ने 7 मई 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 9 मई का मुकदमा पूरी कौम का मुकदमा है। DGISPR ने उम्मीद जाहिर की कि इसमें मुलव्वस तमाम सहूलतकारों और इश्तियाल अंगेज़ी में मुलव्वस अनासिर को जल्द कानून के कटहरे में लाया जाएगा। अगर 9 मई को करने वालों और करवाने वालों को कानून और आइन के मुताबिक सजा ना दी गई तो इस मुल्क में किसी की जान, माल, आबरू महफूज नहीं होगी। हमें अपने निज़ाम पे, जज़ा और सज़ा के निज़ाम पे यकीन कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि हम 9 मई को के मुल्ज़मान को कानून और आइन के मुताबिक सज़ा दें और जल्द से जल्द दें। 9 मई से आज तक ये है कि ये 9 मई का मुकदमा फौज पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तान की कौम का मुकदमा है। पार्टी क़यादत को सजाएं रियासती रिट की बहाली की तरफ उठाया जाने वाला एक अहम कदम है। सियासी तज्ज़िया निगारों के मुताबिक इस सतह की क़यादत को मिलने वाली सजाओं के बाद बानी PTI भी ऐसे मुकदमात का सामना कर सकते हैं। पार्टी के मुतअद्दिद रहनुमाओं के बानी के मुलव्वस होने के बारे में बयानात मौजूद हैं। फैज़ हमीद के सज़ा फैसले के बाद सियासी तज्ज़िया निगार बानी PTI और फैज़ हमीद के इन वाक़यात के पीछे बाहमी गठजोड़ का जिक्र भी कर चुके हैं। तज्ज़िया निगारों के मुताबिक आने वाले दिनों में मज़ीद फैसले भी मुतवक्के हैं। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके बोया में फितनल खारिज की सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। ISPR के मुताबिक हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी बैरूनी दीवार से टकरा दी, जिससे मस्जिद समेत मुल्हिका शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जुर्रत और पेशेवराना महारत का मुजाहरा करते हुए 4 खारजियों को जहन्नुम रसीद किया। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 जवान शहीद हुए। फितनल खारिज के बुज़दिलाना कार्रवाई में मासूम बच्चों और ख़वातीन समेत 15 शहरी भी शदीद जख्मी हो गए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ज़िला शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके बोया में फितनल खारिज की सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर हमले की शदीद मज़म्मत की है। उन्होंने बरवक्त और जुर्रतमंदाना कार्रवाई में 4 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले पाक फौज के 4 बहादुर जवानों को सलाम पेश किया और उनके अहल खाना से ताज़ियत की। हमले में मासूम शहरियों, ख़वातीन और बच्चों के ज़ख्मी होने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद और मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर रही हैं। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर फितनल खारिज के दहशतगर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत। अफगान डिप्टी हेड ऑफ मिशन को वजारत खारजा तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान अबूरी हुकूमत की जानिब से फितनल खारिज की सरपरस्ती पर तशवीश का इजहार और दहशतगर्दों के खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाई का मुतालबा दोहराया गया। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल है। तमाम दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ फौरी और ठोस इक़दाम किए जाने चाहिए। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा का हक महफूज रखता है। आपको आगाह करेंगे, सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी आज से 24 दिसंबर तक इराक का सरकारी दौरा करेंगे। सदर ममलिकत को दौरे की दावत इराक के सदर डॉक्टर अब्दुल लतीफ जमाल रशीद ने दी है। तफसील उमर फारूक से। सदर आसिफ अली जरदारी अपने दौरे के दौरान इराक की क़यादत से आला सतह मुलाकातें करेंगे, जिनमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। मुलाकातों में बामी दिलचस्पी के आम शोबों बशमूल तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, तामीर नौ, अफरादी कुव्वत, टेक्नोलॉजी, तालीम और अवामी रवाबित में ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के तरीकों पर गौर किया जाएगा। मुलाकातों में इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर के साथ कसीरुल-जेती फोरम्स पर ताउन के हवाले से भी तबादला ख्याल किया जाएगा। सदर ममलिकत का दौरा पाकिस्तान और इराक के दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने, शिराकतदारी के नए मौके तलाश करने और अवामी रवाबित बिलखुसूस मजहबी सियाहत और इक्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने का बाइस बनेगा। सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा पाकिस्तान की इराक के साथ मुसलसल सिफारती वाबस्तगी, नतीजा खेज और तज़वीराती शिराकतदारी के फ़रोग़ की अज़्म की अक्कासी करता है, जो इराक के इस्तेकाम और तरक्की के साथ खित्ते में अमन और खुशहाली में मुआविन साबित होगा। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव कमेटी नेशनल इकनॉमिक काउंसिल का इजलास हुआ। कमेटी ने ट्रांसपोर्ट, मवासलात और माहौलियात समेत मुख्तलिफ शोबों के 11 तरक्याती मनसूबों की मंजूरी दे दी। इजलास में दासू हाइड्रो पावर मनसूबे के नजरसानी शुदा PC1 समेत सालाना 10,000 नौजवान इंजीनियर्स की तरबियत और उन्हें तरक्याती मनसूबों में शामिल करने से मुतालिक पॉलिसी पेपर की मंजूरी भी दी गई। किसानों, बरामद कुनिंदगान और पॉलिसी साजों के लिए नया डिजिटल प्लेटफॉर्म मुतारिफ करा दिया गया है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने बागबानी के फ़रोग़ के लिए हॉर्टिकल्चर हॉराइजन्स पॉडकास्ट स्टूडियो का इफ्तिताह कर दिया। आलमी माहिरीन पॉडकास्ट में शिरकत करके जदीद ज़राई तजुर्बात शेयर करेंगे। आम, किन्नू और आलू की पैदावार बढ़ाने समेत पोस्ट हार्वेस्ट नुकसानात और मौसमियाती चैलेंजेस पर भी जामे गुफ्तगू होगी। इस मौके पर वफाकी वज़ीर तिजारत का कहना था कि बागबानी बरामदात को $2 अरब तक ले जाने का हदफ है। पॉडकास्ट वजारत तिजारत की ई-कॉमर्स और आलमी मंडियों तक रसाई के लिए नई हिकमत अमली है। उन्होंने कहा कि डिजिटल मीडिया के जरिए बागबानी शोबे को आलमी बरामदी ताकत बनाने का अज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी से इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान रेलवे के निज़ाम में बेहतरी और मुसाफिरों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी समेत जारी इस्लाहात पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर रेलवे ने 2025 में रेलवे में की गई इनकलाबी तब्दीलियों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रेलवे के इस्लाहाती इक़दामात को सराहा। इस मौके पर दोनों वज़रा ने सिक्योरिटी, ऑपरेशनल बेहतरी और इदारा जाती इस्लाहात में बाहमी ताउन पर इत्तेफाक करते हुए पाकिस्तान रेलवे को जदीद खुदूत पर उस्तवार करने के अज़्म का इज़हार किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में मारगला इनक्लेव मंसूबे का दौरा करके तरक्याती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी ने कहा कि मारगला इनक्लेव प्रोजेक्ट के तरक्याती कामों की रफ्तार को मज़ीद तेज़ किया जाए। इस हवाले से तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहरियों को तमाम मयारी और जदीद सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ से ताजिकिस्तान की वज़ीर सकाफ़त सतारियोन मतलूब ख़ौन ओमोन जोदा ने मुलाकात की, जिसमें दो तरफ़ा ताउन, डिजिटल मीडिया में इश्तराक, मीडिया रवाबित के फ़रोग़, बाहमी ताल्लुकात और दो तरफ़ा अदबी और सकाफ़ती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ व फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने पाक ताजिक हफ्ता सकाफ़त के इनेकाद पर ताजिकिस्तान की वज़ीर सकाफ़त को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाक ताजिक कल्चरल फेस्टिवल जैसे प्रोग्राम्स दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान रवाबित और सकाफ़ती ताउन को मज़ीद बढ़ाने के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सकाफती सिफारतकारी को बहुत अहमियत देता है। मुलाकात में ताजिकिस्तान के सदर के मुतवक्का दौरा पाकिस्तान के मौके पर सकाफती ताउन को फ़रोग़ देने के लिए मुआहदे तय करने पर भी इत्तेफाक हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने ताजिकिस्तान के साथ डिजिटल मीडिया के शोबे में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इआदा करते हुए कहा कि डिजिटल मीडिया मौजूदा दौर में अवामी राबते, सकाफती हम आहंगी और मुस्बत बयानी के फ़रोग़ में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के अवाम के दरमियान फ़िक्री हम आहंगी और बाहमी क़ुर्बत की अलामत है। दोनों बरादर ममालिक इस मुश्तरका अदबी और सकाफती वर्से के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ को अहमियत देते हैं। ताजिकिस्तान की वज़ीर सकाफ़त ने वफाकी वज़ीर इत्तलात का ताजिक फेस्टिवल वीक के इनेकाद में ताउन पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ताजिकिस्तान पाकिस्तान के साथ सकाफती तबादले और डिजिटल मीडिया के शोबे में करीबी ताउन को जारी रखेगा। खबर देंगे आपको। भारतीय रियासत बिहार में वज़ीर आला नीतीश कुमार की जानिब से मुसलमान खातून डॉक्टर का हिजाब जबरदस्ती उतारने के वाक़े पर मुज़म्मती करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी गई है। करारदाद मुस्लिम लीग नून के रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई। करारदाद में कहा गया है कि ये ऐवान भारतीय वज़ीर आला नीतीश कुमार के शर्मनाक और तौहीन आमेज़ फेल की शदीद मज़म्मत मुसलमान खातून डॉक्टर के हिजाब की तौहीन को नाकाबिल कबूल करार देता है। ये ऐवान इस इक़दाम को ख़ातीन की इज़्ज़त वक़ार और मजहबी आज़ादी की सरीह खिलाफ वर्जी समझते हुए भारत में अक़लियतों बिलख़ुसूस मुसलमान ख़ातीन के खिलाफ बढ़ते हुए तासुब का सबूत करार देता है। करारदाद में मुतासरा मुसलमान खातून डॉक्टर के बावक़ार और जुर्रतमंदाना रद्द-ए-अमल को ख़राज तहसीन, नीतीश कुमार से गैर अखलाक़ी रवैये पर फ़ौरी इस्तीफ़ा और वाक़े की शफ़ाफ़ और गैर जानिबदार तहक़ीक़ात कराई जाएँ।
بنگلہ دیش میں بھارت نواز شیخ حسینہ واجد کی حکومت گرانے میں اہم کردار ادا کرنے والے طالب علم رہنما عثمان ہادی کی نماز جنازہ آج ظہر کے بعد بنگلہ دیشی پارلیمنٹ کے سامنے ادا کی جائے گی۔ ان کی تدفین قومی شاعر قاضی نذر الاسلام کے پہلو میں ڈھاکہ یونیورسٹی سینٹرل مسجد کے قریب ہوگی۔ قاتلانہ حملے میں شہید ہونے والے عثمان ہادی کی میت کل سنگاپور سے ڈھاکہ پہنچی۔ عثمان ہادی کی شہادت کے بعد ملک بھر میں شدید ہنگامے پھوٹ پڑے۔ مشتعل مظاہرین نے بھارتی سفارت خانے سمیت بھارت نواز میڈیا اداروں پر حملہ کر دیا۔ دھان منڈی میں شیخ مجیب الرحمان کے گھر کو نذر آتش کر دیا گیا۔ چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس نے آج قومی سوگ منانے کا اعلان کیا ہے۔ تفصیل بتائیں گے رانا شہزاد السلام اپنی اس رپورٹ میں۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب اور قطر کے مختلف علاقوں میں غیر متوقع طور پر برف باری ہوئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق مشرق وسطی میں ہوا کے کم دباؤ کے نظام کے باعث گزشتہ ایک ہفتے کے دوران شدید بارشیں ہوئیں، جبکہ گزشتہ روز سے موسم کی شدت میں مزید اضافے اور خطے میں گرج چمک کے ساتھ طوفان آنے کی پیشگوئی کی گئی تھی۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں گزشتہ روز سے گہرے بادل اور بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ خراب موسم کے باعث تمام اسکولوں کو آن لائن تعلیم پر منتقل کر دیا گیا۔ دبئی اور ابوظہبی کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش ہوئی ہے۔ دبئی میں بارش کے سبب ملازمین کے لیے ورک فرام ہوم نافذ کر دیا گیا۔ صرف انتہائی ضروری عملہ دفاتر آئے گا، جبکہ دبئی کا گلوبل ولیج اور این دبئی عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ اسکائی ڈائیو دبئی کی تمام سرگرمیاں بھی معطل کر دی گئی ہیں۔ دبئی پولیس نے شہریوں سے غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی درخواست کی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق موسمیاتی حالات کے سبب 7 پروازیں منسوخ اور 15 تاخیر کا شکار ہوئی ہیں، جبکہ رات سے موسم بتدریج بہتر ہونے کی توقع ہے۔ یورپی یونین نے یوکرین کے لیے 90 ارب یورو کی مالی معاونت کا اعلان کیا ہے، جو آئندہ مالی سال کے دوران آسان شرائط پر قرض کے طور پر دی جائے گی۔ اس کا مقصد یوکرین کی دفاعی صلاحیت مضبوط کرنا اور عوامی خدمات کو جاری رکھنا ہے۔ روس کے منجمد اثاثے، جن کی مالیت تقریباً 210 ارب یورو ہے، قانونی وجوہات کی بنا پر فوری طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتے، اس لیے قرض یورپی یونین کے بجٹ اور بانڈ مارکیٹ سے حاصل کیا جائے گا۔ یورپی یونین کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اس معاہدے سے اگلے 2 برس تک یوکرین کی فوجی اور معاشی ضروریات پوری کی جا سکیں گی۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی نے یوکرین کے لیے مزید مالی اعانت کے معاہدے کے بعد یورپی رہنماؤں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ روسی اثاثے غیر متحرک رہیں اور یوکرین کو آنے والے سالوں کے لیے مالی ضمانتیں ملیں۔ غزہ میں جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کو آگے بڑھانے کی کوششوں کے سلسلے میں امریکہ کے مشرق وسطی کے لیے خصوصی نمائندے اسٹیورٹ کوف میامی میں قطر کے وزیر اعظم، ترکی اور مصر کے وزراء خارجہ سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں امریکہ کے تجویز کردہ غزہ جنگ بندی معاہدے کے اگلے مرحلے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ 10 اکتوبر کو جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سے اب تک اسرائیل 800 مرتبہ معاہدے کی خلاف ورزی کر چکا ہے۔ صہیونی حملوں میں 400 سے زائد فلسطینی شہید اور 1000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ پاکستان کی آئی ٹی برآمدات میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جس سے ڈیجیٹل معیشت کو مزید استحکام حاصل ہوا ہے۔ ایس آئی ایف سی کی مؤثر پالیسیوں کے باعث رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں آئی ٹی برآمدات میں 19% تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق جولائی تا نومبر 2025 کے دوران آئی ٹی برآمدات کا حجم $1.8 بلین تک پہنچ گیا، جبکہ نومبر 2025 میں یہ برآمدات $356 ملین رہیں۔ آئی ٹی شعبے کی ترقی نہ صرف قیمتی زر مبادلہ میں اضافہ کر رہی ہے، بلکہ روزگار کے نئے مواقع اور ڈیجیٹل خود مختاری کو بھی فروغ دے رہی ہے۔ وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری بورڈ قیصر احمد شیخ نے چنیوٹ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جس میں بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ کھلی کچہری میں وفاقی اداروں کے ضلعی نمائندے اور متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔ وفاقی وزیر نے شہریوں کے مسائل سنے اور متعدد شکایات کے فوری حل کے لیے موقع پر ہی ضلعی افسران سے رابطہ کیا۔ عوام سے خطاب میں قیصر احمد شیخ نے کہا کہ عوامی خدمت حکومت کی اولین ترجیح ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں وفاقی حکومت شفاف حکمرانی اور تیز رفتار کارکردگی کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ شرکاء نے کھلی کچہری کو عوامی اعتماد کی بحالی کی جانب اہم قدم قرار دیا۔ حکومت بلوچستان کا بلوچستان اسپیشل ڈیولپمنٹ انیشیٹو صوبے میں پائیدار ترقی کا مؤثر ذریعہ بن رہا ہے۔ منصوبے کے تحت جنوبی بلوچستان کے 5 اضلاع کیچ، خاران، واشک، چاقی اور پنجگور میں 137 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔
अब तक 13 मंसूबे कामयाबी से मुकम्मल हो चुके हैं, जिनमें जनाजा गाहों की तामीर, सेहत मराकज़ और मदारिस में सोलर सिस्टम्स की तनसीब और सोलर स्ट्रीट लाइट्स शामिल हैं। इन मंसूबों से तवानाई बहरान में कमी, अवामी सहूलत और सिक्योरिटी में बेहतरी आई है। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सबब बनने वाला मगरबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान के रास्ते मुल्क में दाखिल हो गया है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की तवक्को है। महकमे मौसमियात ने ख़राब मौसम के बायस अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने का इम्कान है। ताहम शिमाल मगरबी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खित्ता पोठोहार में तेज़ हवाओं के साथ बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। उधर पंजाब और बालाई सिंध के अजलाह में धुंध छाए रहने की तवक्को है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहा। पंजाब और बालाई सिंध के बाज़ अजला में धुंध और स्मॉग छाई रही। ताहम जनूब मगरबी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर बारिश हुई। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आगाह करते हैं आज दुनिया के आलूदा तरीन बड़े शहरों की सूरत हाल से। आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली पहले नंबर पर रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 451 रिकॉर्ड किया गया। काबुल 248 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दूसरे नंबर पर रहा। कोलकाता 245 के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। पाकिस्तान का शहर कराची 242 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ चौथे नंबर पर रहा। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको वापस लिए चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। दीगर खबरों में आपको आगाह करेंगे, कोर कमांडर लाहौर ने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर का खुसूसी दौरा किया, जहां उन्होंने तलबा और असातिज़ा से मुलाकात की। खुसूसी नशिस्त से खिताब में कोर कमांडर ने कहा कि पूरी कौम पाक फौज का फ़ख्र है और कौम और फौज के मजबूत रिश्ते से दुश्मन परेशान है। दौरे के दौरान NCA में ऑपरेशन बुनियान मरसूस हॉल्स का इफ्तिताह किया गया, जबकि पाक अफवाज के एहसास में तलबा की तैयार करदा पेंटिंग्स की नुमाइश का जायज़ा लिया गया, जिनमें मार के हक़ की कामयाबियों और शुहदा की कुर्बानियों को उजागर किया गया। नशिस्त के इख्तिताम पर तलबा ने पाक फौज से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। एबटाबाद के सियाहती इलाके गलियात में लगी जंगलाती आग बेकाबू हो गई है, जो तौहीदाबाद कुंडलदा तक फैल चुकी है। पहाड़ी और दुश्वार गुजार रास्तों के बायस रेस्क्यू 1122 को आग बुझाने में शदीद मुश्किलात दरपेश हैं, जबकि मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। आग से वसी रकबा मुतासर हुआ है, सैकड़ों दरख्त जलकर राख हो गए हैं, जबकि वाइल्ड लाइफ और परिंदों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ज़िले की इंतजामिया ने सूबाई हुकूमत से 2 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स तलब किए हैं, ताहम ताहाल कोई हेलीकॉप्टर मौके पर नहीं पहुंच सका। उज़्बेकिस्तान का तारीखी शहर समरकंद इल्म, तहजीब और सकाफत का अमीन है, जहां सदियों पुराने आसार आज भी माजी की अजमत की झलक पेश करते हैं। इसी हवाले से मुलाहिजा कीजिए फरहाना खान की ये रिपोर्ट। समरकंद का शुमार दुनिया के कदीम तरीन शहरों में होता है। ये शहर मुख्तलिफ अदवार में साइंस, फन तामीर और सकाफत का मरकज रहा। तैमूरी दौर में समरकंद ने गैर मामूली तरक्की की और यही वो दौर था जब शहर में शानदार इमारतें तामीर की गयी। रेगिस्तान स्क्वायर समरकंद की पहचान समझा जाता है, जहाँ 3 अजीम मदारिस इल्म, तहकीक और तहजीब की रोशन तारीख बयान करते हैं। ये स्क्वायर कभी वस्ती एशिया का इल्मी और सकाफती मरकज रहा है। समरकंद में वाक़ हजरत ख्वाजा दानियाल का मज़ार अकीदत और एहतराम की अलामत समझा जाता है।
है। ये मज़ार मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों के लिए रूहानी मरकज की हैसियत रखता है, जहाँ ज़ायरीन अमन और बरकत की दुआ करते नजर आते हैं। इसी शहर में मौजूद इमाम बुखारी कम्प्लेक्स हदीस के अजीम इमाम मुहद्दिस आज़म इमाम बुखारी से मंसूब है। ये कम्प्लेक्स इस्लामी दुनिया में इल्म हदीस का अहम मरकज माना जाता है, जहाँ दुनिया भर से उलमा और तालिब इल्म हाजिरी देते हैं। शाह जिंदा कम्प्लेक्स समरकंद की रूहानी और फन तामीर की शान का मजहर है। नीली और फिरोजी रंग की टाइलों से मुज़य्यन ये तारीखी मकबरा तैमूरी दौर के आला फन तामीर की याद दिलाते हैं और यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में शामिल है। बीबी खानुम मस्जिद अपने अजीम शान गुम्बद और वसी सहन के बाइस इस्लामी फन तामीर का शाहकार समझी जाती है। तैमूर लंग और इसके खानदान का मकबरा, जिसे गोरे अमीर कहा जाता है, तैमूरी सल्तनत की अजमत और शान शौकत की अलामत है। यहाँ तैमूर लंग समेत इसके करीबी रिश्तेदार मदफून है। अफरासियाब म्यूजियम और इसके अतराफ मौजूद कदीम खंडरात समरकंद की तारीख को उजागर करते हैं, जहाँ कदीम तहजीबों के आसार आज भी महफूज है। समरकंद के ये तारीखी मकामात न सिर्फ उज़्बेकिस्तान की शनाख्त है, बल्कि इस्लामी और आलमी तहजीब के मुश्तरका विरसे की जिंदा मिसाल भी है, जो आने वाली नस्लों को तारीख, इल्म और रूहानियत से जोड़े रखने का जरिया बने हुए हैं। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, समरकंद, उज़्बेकिस्तान। ओकाड़ा में कायम होने वाला सहूलत बाजार आवाम के लिए महंगाई के खिलाफ एक अमली कदम बन गया है, जहां शहरियों के लिए एक ही जगह पर रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें सरकारी नरखों पर दस्तयाब हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अशरफ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अवाम दोस्त विजन के तहत ओकाड़ा में सहूलत बाजार का क़याम अमल में लाया गया है, जहां पर शहरियों को रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें सरकारी नरखों पर फराहम की जा रही हैं। ओकाड़ा में 14 कनाल रकबे पर कायम इस सहूलत बाजार पर 30 करोड़ रुपए लागत आई है, जबकि बाजार में मजमूई तौर पर 108 दुकानें कायम की गई हैं, जो इंतहाई कम किराए पर दुकानदारों को फराहम की गई हैं। सहूलत बाजार का मकसद आवाम को महंगाई से रिलीफ देना और शफाफ निज़ाम के तहत म्यारी अशिया की फराहमी यकीनी बनाना है। सहूलत बाजार की ऑपरेशनल टाइमिंग सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक है, जिसमें जनरल पब्लिक इत्मीनान से शॉपिंग करती है और चीज़ों के जो नर्ख हैं वो हमारे पास आम मार्केट से बहुत ही ज़्यादा कम है और चीज़ें म्यारी भी हैं। ये सहूलत बाजार जदीद सहूलियात से आरास्ता है, जहाँ एक ही छत तले सब्जी, फल, गोश्त, दालें और दूसरी खाने पीने की चीज़ें सरकारी नरखों पर दस्तयाब हैं। खीरे ले 60 रुपए किलो, आलू ले 30 रुपए किलो, अच्छी सब्जी मिली है। घर के लिए शैम्पू लिए हैं, कुछ ज़ाती इस्तेमाल के लिए चीज़ें ली हैं। ये बाज़ार की निस्बत हमें यहाँ से सस्ती मिल रही है और ये हमारे लिए बहुत ही सहूलत के लिए कि यहाँ हर चीज़ अवेलेबल है। गोश्त भी अच्छा है और रेट भी बाज़ार से बहुत कम है और हमें इस बाज़ार की बहुत ज़्यादा सहूलत मिली है। बाजार में मुफ्त बिजली, कुशादा पार्किंग, पीने का साफ पानी, CCTV कैमरों के जरिए निगरानी और सिक्योरिटी की सहूलत भी फराहम की गई है। सहूलत बाजार का क़याम न सिर्फ आवाम के लिए रिलीफ का बायस बन रहा है, बल्कि इससे मुकामी सतह पर रोज़गार के नए मौके भी पैदा हुए हैं। मोहम्मद अशरफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, ओकाड़ा। पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम की काश्त का दिया गया हदफ जिला बहावल नगर ने न सिर्फ पूरा किया, बल्कि इसे अबूर करते हुए पंजाब भर में सबसे ज्यादा गंदम काश्त करने वाला जिला भी बन गया। मज़ीद तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना फैसल रहमान की इस रिपोर्ट में। इस साल जिला बहावल नगर ने गंदम की काश्त में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से दिया गया जिलाई हदफ 10,91,000 एकड़ था, ताहम किसानों के भरपूर जोश, हुकूमती इक़दामात और साजगार इंतजामात के बाइस 11,03,000 एकड़ पर गंदम की काश्त की गई है। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत के मुताबिक काश्त में इस गैर मामूली इजाफे की बड़ी वजूहात में बरवक्त नहरी पानी की फराहमी, किसान तक मुसलसल फील्ड रहनुमाई और मौसर ज्यादा गंदम उगाओ मुहिम का किरदार शामिल है। इस साल एक बहुत बड़ा चैलेंज था गंदम काश्त करवाना, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 3500 रुपए के हिसाब से रेट नोटिफाई किया या रेट दिया, तो गवर्नमेंट ज़िम्मेदार में एक जोश जज्बा पैदा हुआ और हम अल्हम्दुलिल्लाह 10,91,000 के एवज मुतबादल हम जो है वो इस वक्त तक तकरीबन 11,03,000 एकड़ पे गंदम काश्त करवाने में कामयाब हो चुके हैं। हुकूमत की जानिब से गंदम का इमदादी रेट 3500 रुपए फी मन मुकर्रर किए जाने और 62 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदारी के बरवक्त ऐलान ने भी किसानों को गंदम की तरफ रागिब किया, जिससे जिला भर में तारीखी सतह पर काश्त मुमकिन हुई। जिला इंतजामिया और महकमा ज़राअत ने किसानों की मेहनत और जज्बे को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की है कि इस साल गंदम की रिकॉर्ड पैदावार भी हासिल की जाएगी। राना फैसल रहमान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बहावल नगर।
पंजाब धीरानी प्रोग्राम के तहत कसूर में 98 मुस्तहक जोड़ों की शादी की तकरीब हुई। तकरीब में सूबाई वज़रा, मेंबरान असम्बली समेत अहले खाना ने शिरकत की और तफसीर आपको बताएंगे कसूर से चौधरी वसीम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के प्रोग्राम धीरानी से गुर्बत की जिंदगी गुजारने वाले 96 खानदानों की बेटियों के पिया घर सुधारने की तकरीब हुई। पंजाब की धीरानियों में जिला कसूर के 85 मुस्लिम और 11 मसीह खवातीन शामिल थीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के धीरानी प्रोग्राम में हर जोड़े को 2-2 लाख रुपए सलामी भी दी गई। तकरीब में सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर व बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट, वजीर तालीम राना सिकंदर हयात, अरकान असम्बली हाजी नईम सफदर अंसारी, एहसन रजा खान, जिली इंतजामिया और सैकड़ों बरातियों ने शिरकत की। सब हैसियत एक अमीर, एक सरमायादार की बेटे की शादी होती है। आज इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरीके से डिग्निटी के साथ आज इन हमारे पंजाब की बेटियों की शादियां हो रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इन बेटियों के लिए एक माँ का किरदार निभाया है और इन पंजाब के वालिदैन के लिए एक शफीक बेटी का किरदार है। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका के लिए 1 डिश पुरतकल्लुफ खाना भी दिया गया, जबकि नए जोड़ों को नेक तमन्नाओं के साथ रुखसत किया गया। चौधरी वसीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कसूर। बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी ननकाना साहिब के ज़ेर एहतमाम रंगारंग विंटर फेस्टिवल 2025 का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं ननकाना साहब से जावेद अहमद माविया। बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी के शोभा बाटनी के ज़ेर एहतमाम होने वाले विंटर फेस्टिवल के दौरान तलबा और तालबात ने पंजाबी सकाफत, रवायती खाने पीने की चटपटी अशिया, हाथों से बनी हुई खूबसूरत पेंटिंग्स, दस्तकारी और दीगर दिलचस्प स्टॉल्स लगाए। मेहंदी के स्टॉल पर तालबात का खासा रश देखने में आया, जबकि पालतू जानवर भी हाज़रीन की खुसूसी तवज्जो का मरकज बने रहे। इस तरह की जो एक्टिविटी है वो उन्हें जो रियल लाइफ एक्सपोजर या एक्सपीरियंस है वो हासिल हो रहा है। उन्होंने छोटे छोटे डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स बनाए हैं, रियल लाइफ सिनेरियो जो है उसको शोकेस किया है। तलबा और तालिबात की इंटरेक्शन करवाई जा सके, उन्हें बताया जा सके। बहुत मीठी जुबान है पंजाबी और इसकी सकाफत, मोहब्बत और अमन और भाईचारे का पैगाम देती है। बचपन से मुझे पेंटिंग का शौक था, फिर मैं यूनिवर्सिटी आ गया। यूनिवर्सिटी आके मैंने मजीद पेंटिंग बनाई, लोगों ने भी मेरी हौसला अफजाई की है। फेस्टिवल के दौरान तलबा ने रवायती पंजाबी रक्स पेश करके समा बांध दिया, जबकि ढोल की थाप और मुख्तलिफ गानों की धुनों पर खूबसूरत घोड़ा डांस से हाज़रीन खूब लुत्फ अंदोज हुए। इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनका माइंड थोड़ा फ्रेश हो। आज हम बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए क्योंकि बच्चों को इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। फेस्टिवल का मकसद तलबा और तालबात की तख्लीकी सलाहियतों को फरोग देना और उनमें सकाफती विरसे की अहमियत को उजागर करना था। इस तरह की तकारीब के इनकाद से तलबा और तालबात को ज़हनी तौर पर ताज़ा दम होने और अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका मिलता है। जावेद अहमद मुआविया, पीटीवी न्यूज, ननकाना साहिब। ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के ज़ेर एहतमाम आर्ट गाला का इनेकाद किया गया। तफसील बताएंगे काशिफ मुनीर। आर्ट गाला का इफ्तिताह वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद डॉक्टर जुल्फ़िकार अली ने किया। गाला में माहिरीन तलीम, तलबा, असातिज़ा, महकमा ज़राअत और ज़िलई अफसरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आर्ट गाला में लाइव पेंटिंग, आर्ट वर्क, तलबा की तैयार करदा मसनूआत के स्टॉल शायकीन की खूसी तवज्जो का मरकज बने रहे। उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, खूबसूरत काम किया है, तो इसमें तलबा की जो एनर्जी थी वो उसको पॉजिटिवली यूज़ किया गया। मुख्तलिफ नौइयत का काम है और बहुत अच्छा काम है, और कुछ जो नए स्टार्टअप्स हैं उनका भी काम है, सकाफत पंजाब की भी, कल्चर भी, शायरी भी। आर्ट के लिहाज से इन्होंने जो चीज़ों को बेहतर तरीके से पेश किया है, मैं समझता हूँ बल्कि एक अच्छा ज़रिया मुआश भी वो इससे पैदा करें। ट्रैफिक पुलिस ने भी अपना एक स्टॉल जो है यहाँ लगाया है, ट्रैफिक एजुकेशन के हवाले से और अवेयरनेस पैदा करने के हवाले से हमारी एक एफर्ट है। हम आज एग्रीकल्चर आर्ट गाला के एक्सपो पर मौजूद हैं। यहाँ पे हम सब स्टूडेंट्स ने मिलके डिफरेंट स्टॉल्स लगाए हैं। मकरामे में मेरे वॉल हैंगिंग्स वगैरह और लैंप्स होते हैं, बैग्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें मैं मकरामे में क्रिएट करती हूँ।
शुरा ने गाला में रखे गए फनपारों को तलबा की तख्लीकी सलाहियतों का इजहार करार देते हुए इन्हें खूब सराहा। आर्ट गाला जैसी सरगर्मियां नौजवानों में तख्लीकी सलाहियतों को उभारने और इन्हें अमली जिंदगी के लिए तैयार करने में अहम किरदार अदा करती हैं। काशिफ मुनीर, PTV न्यूज़, फैसलाबाद। ठट्टा में 1 दिसंबर से कल्चर डे का सिलसिला जारी है और इस सिलसिले में आर्मी पब्लिक स्कूल ठट्टा में एक सकाफती तकरीब मुनक्किद की गई। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे मिर्जा हसन बेग। सिंध की सखावत सालों नहीं, सैकड़ों सालों नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी है और सखावत की पहचान रली, अजरक और टोपी है। सिंध की मेहमान नवाजी पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। कल्चर डे जो है वो उसके लिए दिसंबर का महीना जो है वो मखसूस किया गया। 1 तारीख से 31 दिसंबर तक मुख्तलिफ जगहों पे सिंध का कल्चर जो है उजागर करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम होते हैं। आज आर्मी पब्लिक स्कूल में एक शानदार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें न सिर्फ कौमी नगमे पेश किए गए, कल्चर सकाफती नगमे पेश किए गए, तकारीर पेश की गई, उसके अलावा मारूफ फनकारों की मेलोडी पेश की गई। आज के दिन सिंधियों की ईद की तरह है कल्चर डे, हम जो सेलिब्रेट करते हैं हर साल, हमें ये मनाना चाहिए। हमें बहुत अच्छा लगा, हमारे प्रिंसिपल साहब ने हमारे लिए इतना बड़ा प्रोग्राम किया है। बच्चों ने बड़ी कोशिश की, हमारे टीचरों ने भी बड़ी कोशिश की है। अगले साल हम इससे भी अच्छा करेंगे। ये तकरीब दूसरी मुख्तलिफ तकरीब से बिल्कुल मुख्तलिफ थी और बहुत ही खूबसूरत थी। बहावल नगर में भी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत भरपूर क्रैकडाउन जारी है। तफसील बता रहे हैं राना फैसल रहमान अपनी इस रिपोर्ट में। बहावल नगर में भी ट्रैफिक पुलिस का ऑपरेशन भरपूर अंदाज से जारी है। अब तक की कार्रवाइयों के दौरान 743 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। 3257 गाड़ियां और मोटरसाइकिलें थानों में बंद की गई हैं, जबकि 10,514 चालान के साथ 2,18,32,200 रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए हैं। ऑपरेशन के दौरान बगैर नंबर प्लेट गाड़ियों, धुआं छोड़ने वाली ट्रांसपोर्ट, गैर महफूज और ओवरलोड गाड़ियों के खिलाफ भी बिला इम्तियाज कार्रवाई की जा रही है। हुकूमत का बहुत अच्छा इकदाम है। ये हेलमेट जो है वो आवाम की सेफ्टी के लिए कर रहे हैं और इस अमल को हम सराहते हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी हादसा में इजाफे का बायस बन रही थी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कामरान असगर ने तमाम अफसरान को हिदायत जारी की है कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाया जाए। कवानीन की ना पाबंदी करें। अवाम उन्नास से हमारी अपील है, जुर्माना करना को हमारा दिल नहीं करता, लेकिन हमारी मजबूरी है। ट्रैफिक कवानीन पर पाबंदी करें, हम जुर्माना नहीं करेंगे। हेलमेट करें, लाइसेंस बनवाएं। इनका कहना है कि शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है और इस मकसद के हसूल के लिए क्रैकडाउन जारी रहेगा। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी ही जिंदगी को महफूज बनाती है। राना फैसल रहमान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बहावल नगर। पसरूर में पुलिस ने हेलमेट और ड्राइविंग लाइसेंस के इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। तफसीलात आपको बताएंगे पसरूर से राना कैसर हयात। जी बिल्कुल, पसरूर में ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए पुलिस की जानब से खसूसी मुहिम भरपूर अंदाज में जारी है, जिसके तहत नए पंजाब ट्रैफिक तरमीमी आर्डिनेंस 2025 के तहत ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं, जबकि गाड़ियों की जब्तगी और ड्राइविंग लाइसेंस की मुअत्तली जैसे इक़दाम भी अमल में लाए जा रहे हैं। पंजाब मरियम नवाज साहिबा के कहने पर हम लोग ट्रैफिक वाले जो अपना रूल अदा कर रहे हैं, इस पर अभी तक हम लोगों ने लाखों की सूरत में चलान किए हैं और कई ज्यादा गाड़ियां जब्त करवाई गई हैं। ट्रैफिक कवानीन पर ये जो अमल दरामद हो रहा है, ये बहुत एक अच्छा अमल है और ये वज़ीर आला पंजाब का जो विजन है इसको हम सराहते हैं। यकीनी तौर पर अगर हम देखें तो पिछले दिनों से हादसात में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। पुलिस हुकाम के मुताबिक इस मुहिम का मकसद शहरियों में नज़्म व ज़ब्त कायम करना और हादसात की रोकथाम को मुमकिन बनाना है। ये मुहिम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत शुरू की गई है ताकि शहरियों को महफूज और पुरअमन सफरी माहौल मुहैया किया जा सके। राना कैसर हयात, PTV न्यूज़, पसरूर। और नाज़रीन, आर्टिस्ट अपने खूबसूरत ख्याल को कैनवस पर दिलकश रंग भरकर पेंटिंग की सूरत में पेश करता है। आज हम आपको ऐसी आर्टिस्ट की पेंटिंग दिखा रहे हैं जो बर्तन धोने वाली स्टील वूल से पेंटिंग बनाती हैं। चकवाल से सैयद वजीह कासमी की ये रिपोर्ट। यतफक्करून और यततब्बरून के मिस्ताक आर्टिस्ट अपने खूबसूरत ख्याल और ख्वाबों को अपने शाकार के अंदर समो देता है। चकवाल की आर्टिस्ट सायरा भी रंगों को मुख्तलिफ अंदाज से पेश करती हैं कि देखने वाला इनके शाकारों की गहराइयों में खोकर मौजे हयात की कैफियत महसूस करता है।
इनके काम में रंग भरने वाला टूल कोई नाइफ नहीं, बल्कि जिससे खवातीन घरों में स्टील वूल से बर्तन धोती हैं, इन तारों की बारीकी से सायरा कायनात की खूबसूरती को रंगों से ख्वाब एहसासात की कैफियत में उतारने की कोशिश करती हैं। अपने फनपारों में रब्बे जुल जलाल की कुदरती खूबसूरती को दिलकश अंदाज से पेश करती हैं। इसको लैंडस्केप आर्ट कहते हैं और मेरा काम रियलिस्टिक नहीं है, इम्प्रेशनिस्टिक है। छोटे छोटे टूल्स बना लेती हूँ इस स्टील वूल के। उन तारों के साथ कलर टच होती है और वो जब इकट्ठी लगती है डिफरेंट शेड में, वो एम्बॉस होता है टेक्सचर कि आपको फील होता है कि आप रियल मंजर के करीब खड़े। सायरा पाकिस्तान की वाहिद आर्टिस्ट हैं जो स्टील वूल का इस्तेमाल करती हैं। मुल्की और गैर मुल्की सतह पर अपने फनपारों को उजागर कर चुकी हैं। आर्टिस्ट अपने पैगाम को तस्वीर में इस तरह नुमाया करता है कि इंसानों के रवैयों, कुदरती हुस्न और रोजमर्रा की जिंदगी का अक्स उनकी पेंटिंग से झलके। वजी काज़मी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, चकवाल। सऊदी अरब के गवर्नर तबूक शहजादा फहद बिन सुल्तान बलूचिस्तान पहुंच गए। वज़ीर ख़ज़ाना बलूचिस्तान में शोएब नौशेरवानी ने दालबंदीन एयरपोर्ट पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। रुकशान डिवीज़न से मुंतखब MPA मीर जाहिद अली रैकी, इलाकाई माहिदीन और ज़िले अफसरान भी गवर्नर तबूक के इस्तकबाल के लिए हवाई अड्डे पर मौजूद थे। खेल की खबरों में खुशामदीद। नाज़रीन, अंडर 19 एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान कल खेला जाएगा। दुबई में खेले गए सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से हराया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बांग्लादेश को बैटिंग की दावत दी। बारिश के बाइस मैच को 27 ओवर्स तक महदूद किया गया। बांग्लादेश की टीम 26.3 ओवर्स में 121 रन बनाकर आउट हो गई। सिर्फ 3 बैटर्स डबल फिगर तक पहुंच पाए। समी अन बशीर ने 33 और अजीजुल हकीम ने 20 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल सुबहान ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। हुज़ैफा एहसन ने 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने 122 रन का हदफ 16.3 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। ओपनर समीर मिन्हास 69 रन के साथ नाकाबिल शिकस्त रहे। उन्होंने 2 छक्के और 6 चौके लगाए। उस्मान खान ने 27 रन स्कोर किए। अहमद हुसैन 11 रन पर नॉट आउट रहे। अंडर 19 एशिया का PTV स्पोर्ट्स और PTV नेशनल पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। एडिलेड में एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की गिरफ्त मजबूत है। खेल के आखिरी रोज इंग्लैंड को जीतने के लिए मजीद 228 रन, जबकि ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटें दरकार हैं। खेल के चौथे रोज इंग्लिश टीम ने कैंगरूज के 435 रन के हदफ के ताकुब में 6 विकेटों पर 207 रन बनाए। बेन डेकेट 4, ओली पोप 27, जो रूट 39, हैरी ब्रोक 30, बेन स्टोक्स 5 रन बनाकर आउट हुए। जैक क्रॉली ने सबसे ज्यादा 85 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से पैट कमिंस और नेथन लियोन ने 3-3 विकेटें हासिल की। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी इनिंग्स कल के स्कोर 271 रन 4 खिलाड़ी आउट से दोबारा शुरू की, तो बाकी के 6 खिलाड़ी स्कोर में 79 रन के इजाफे के बाद पवेलियन लौट गए और इंग्लैंड को 435 रन का हदफ मिला। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 371 और दूसरी इनिंग्स में 349 रन बनाए। इंग्लिश टीम पहली इनिंग्स में 286 रन बनाकर आउट हुई थी। 5 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 की बढ़तरी हासिल है। एशेज सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। अमरीकी काउंसिल जनरल स्टेशन सैंडर्स ने PSL चीफ एग्जीक्यूटिव सलमान नसीर से मुलाकात की है। लाहौर में होने वाली मुलाकात में न्यूयॉर्क में होने वाले PSL रोड शो और अमरीकी सरमायाकारों की पाकिस्तान सुपर लीग में दिलचस्पी पर तफसीली गुफ्तगू की गई। अमरीका में क्रिकेट की बढ़ती हुई दिलचस्पी के हवाले से मुख्तलिफ मनसूबों पर गौर किया गया। काउंसिल जनरल ने PSL की वर्किंग और उसकी बढ़ती हुई मकबूलियत के बारे में जानने में दिलचस्पी जाहिर की। मुलाकात में अमरीका में क्रिकेट की तरक्की के लिए नए रास्ते तलाश करने पर भी इत्तेफाक किया गया। नाज़रीन, बिग बैश लीग में चौकों और छक्कों की बारिश सबसे बड़े हदफ के कामयाबी से ताकुब का रिकॉर्ड बन गया। लीग के छठे मैच में ब्रिस्बेन हीट ने पर्थ स्कॉचर्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 8 विकेटों से हराया। ब्रिस्बेन में खेले गए मैच में पर्थ स्कॉचर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 257 रन बनाए। ओपनर फिन एलन ने 38 गेंदों पर 79 रन की इनिंग्स खेली। उनकी इनिंग्स में 8 छक्के और 3 चौके शामिल थे।
कोपर कुनौली ने 37 गेंदों पर 77 रन स्कोर किए। उन्होंने 6 छक्के और 6 ही चौके लगाए। ब्रिस्बेन हीट की जानिब से जियावर बार्टलेट ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। शाहीन आफरीदी, जैक विल्डरमोट, लियाम बास्केट और मैथ्यू कोनेमान के हिस्से में एक विकेट आई। जवाब में ब्रिस्बेन हीट ने शानदार बैटिंग का मुजाहिरा करते हुए 258 रन का हदफ एक गेंद कबल ही हासिल कर लिया। पहली गेंद पर कॉलिन मिनरू के आउट होने के बाद जैक विल्डरमोट और मैट रेनशा ने तूफानी इनिंग्स खेली। दोनों ने सेंचुरियां स्कोर की। मैट रेनशा ने 51 गेंदों पर 9 छक्के और 5 चौकों की मदद से 102 रन बनाए। जैक विल्डरमोट ने 54 गेंदों का सामना किया और 110 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। उन्होंने भी 9 छक्के और 5 चौके लगाए। बिग बैश लीग में मजमूई तौर पर ये दूसरा बड़ा टाइटल स्कोर है, जबकि पहली मर्तबा इतने बड़े हदफ का कामयाबी से ताक़ुब हुआ है। बिग बैश लीग PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। बिग बैश लीग के 7वें मैच में सिडनी सिक्सर्स और सिडनी थंडर्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। सिडनी में शेड्यूल मैच में दिन 1:15 से PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। इवेंट में सिडनी थंडर्स ने अब तक एक मैच खेला, जिसमें उन्हें ह्यूबर्ट हुरिकेन्स के हाथों नाकामी का सामना करना पड़ा था। सिडनी सिक्सर्स को अब तक खेले गए दोनों मैचेस में शिकस्त हुई है। नाज़रीन, इंटरनेशनल लीग T20 के 20वें मैच में दुबई कैपिटल्स ने शारजा वॉरियर्स को 63 रन से शिकस्त दी। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। दुबई में खेले गए मैच में मेज़बान दुबई कैपिटल्स ने 6 विकेटों पर 180 रन बनाए। सिद्दीकुल्लाह अतल ने 66 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद नबी 38 रन के साथ नॉट आउट रहे। शारजा वॉरियर्स की जानिब से तस्कीन अहमद ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में शारजा वॉरियर्स की टीम 17 ओवर्स में 117 रन बनाकर आउट हुई। जेम्स ड्रू ने 47, कप्तान सिकंदर रजा ने 21 रन बनाए। दुबई कैपिटल्स के मोहम्मद नबी और वक़ारुस्सलाम खेल ने 3-3, हैदर अली और मुस्तफिजुर रहमान ने 2-2 विकेटें हासिल की। शानदार ऑल राउंड परफॉर्मेंस पर मोहम्मद नबी प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। खेल का हवाला आपने जाना, अब रुख करेंगे मेन डेस्क का। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। न्यूज़ टीम के हमरा आपसे चाहेंगे इजाज़त, ब्रेक, उसके बाद आप मुलाहिजा करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। देखते रहिए PTV न्यूज़। बार वक्त